A very good evening to you. This is Latika Shami from PressLegend24.online. I welcome all my viewers. Today is 14th October, and in the past 69 years back, if down the line, if you'll see, it's all about 14th October 1956 when Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ramji Ambedkar, had done a masterpiece, you can say, when it comes to India. India is all about rituals, India it's all about traditions, India is all about everything. But when it comes to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, it's all about Diksha Bhumi. What happened in the year on 14th of October 1956? But before going to 1956, I would like to tell my viewers and subscribers and Indians that in the year 1935 only, this initiative had been taken place by Dr. Bhimrao Ambedkar, that he is going to be in a place when he don't want to be a Hindu anymore and he don't want to go according to the rituals of Hinduism. He wanted that a person who is looking after rituals should deny the rituals and understand the meaning of what we call a person should not follow religion. Religion is all about humanity. Religion is all about independence, which Dr. Bhimrao Ambedkar wanted to tell everyone. So, in the oath on 14th October 1956, he had taken oath over here in Diksha Bhumi. You can see that this is the place where he took cognizance with all his, you can see, anuyayis, we call it anuyayi. So, let's come and see how the program is going on in Diksha Bhumi, as it's a huge day, huge mass. As I can say that above 4 lakh people had taken initiative that day and taken oath as a Buddhist, and 22 verses or 22 their pratigya, you can say, they had taken an oath on that pratigya. You can see a huge mass had come here. The cameraman is showing you that how the people had united here to understand the reality and fact that Dr. B.R. Ambedkar was a learned socio-economist. He was a doctor, he was a lawyer, he was everything, and he had told us that learning is a process. Everyone should learn, earn, and be independent in the society. This is all about, I can say, today is 14th October and everyone is happy out there. So be with us, like the channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami for PressLegend24.online. Thank you so much. तो इस वक्त हम हैं दीक्षा भूमि में। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ है और लोग क्या जानते हैं। आइए सुनते हैं उनसे। तो आइए चलिए जानते हैं, नॉलेज की बात जब आती है, क्या लोगों को पता है 14th अक्टूबर को यहाँ क्यों आए? चलिए बने रहिए मुझसे। हाय, क्या आपको पता है आज आप यहाँ 14th अक्टूबर को क्यों आए हैं? नहीं, नो आइडिया। आप जानती हैं? बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो धर्म परिवर्तन है वो किया था, हिंदू धर्म से उन्होंने बौद्धिस्ट जो है वो अपनाए थे। यस। और क्या जानते हैं? और सम्राट अशोक विजयादशमी भी आज के दिन ही हुई थी। हाँ। बस मतलब 2 इंसिडेंट्स हुए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर की जो लाइफ एक रही है, लाइफ लॉन्ग रही है, तो आपको लगता है कि जब उन्होंने ये कन्वर्जन लिया था, क्या सोच के लिया? मतलब उन्होंने तो पहले पूरा स्टडी किया था कि मतलब क्या बेस्ट रहेगा खुद के लिए और समाज के लिए। हाँ, जो बेस्ट है उन्होंने पहले उसके ऊपर पूरे डीपली स्टडी किए और उनके थॉट से उनको जो अच्छा लगा समाज के लिए, खुद के लिए, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए, हाँ, उन्होंने वो अपनाया। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। क्यों आए हैं? मैडम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 को जो 9 कोटि दलित थे उनको हिंदू धर्म से निकालकर बौद्ध धर्म में दिया और 22 प्रतिज्ञाओं की दीक्षा दी। इसलिए 14 अक्टूबर को एक बड़ी धम्म क्रांति माना जाता है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है बुद्धिज्म में। इसलिए लोग वो बाबा साहब को वंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए 14 अक्टूबर को यहाँ पे दीक्षा भूमि पे आते हैं। और 14 अक्टूबर के दिन 1956 को दसरा था, इसलिए दसरे के दिन भी लोग यहाँ पे आते हैं बाबा साहब को नमन करने। थैंक यू सो मच। मैडम, आप बोलना चाहते हैं क्यों आए यहाँ पे? आज आप यहाँ पे 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर। आप B.R. अम्बेडकर सर को फॉलो करते हैं? क्या लगता है, क्या विशेष चीज है उनके अंदर जो आज भी सारे अनुयायी आज भी उनके पास आते हैं? विशेष तो सारी दुनिया जानती है उनको, उनके 2 शब्द भी बोलना यानी उनके लिए कम है। अभी सोचेगा नहीं इतना बोलना, इतना सोचेगा नहीं बोलना। चलिए कोई बात नहीं, तैयारी से नहीं थे। मैडम, क्या बोलना चाहते हैं? बस सबको बोलूंगी नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। ये तो बहुत अच्छी बात है, जय भीम के नारे लग रहे हैं। सर, आज का दिन क्यों विशेष है? क्यों विशेष है आज का दिन? आज का दिन विशेष क्यों? बताइए, कुछ बताएंगे आज का दिन विशेष क्यों है? नहीं पता। आज क्यों आए हैं आप? आज बाबा साहब ने दीक्षा थे, बाबा साहब ने दीक्षा दी है। धम्म चक्र प्रवर्तन देने 14 को। आपको पसंद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर? हाँ। चलिए, पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है। क्या बोलना चाहते हैं, आज क्यों आए? आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें उस हिंदू समाज से जो हमें इज्जत नहीं देते थे उससे मुक्ति दिला के आज हमें इतनी इज्जत भरी जिंदगी दी है। हम लड़कियों को इतना शिक्षा का मौका दिया है कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो उस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को आज हम पूजने आए, उनका सम्मान करने आए, उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। मतलब इनका कहना है कि उन्होंने वुमेन्स को एम्पावरमेंट दिया ताकि वो आगे बढ़ सके, पढ़ाई कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। सर, कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम, कुछ बाबा साहब के बारे में 2 शब्द। बाबा साहब के बारे में 2 शब्द। बाबा साहब ने हमको लिखने पढ़ने का ये स्थान दे दिया, पढ़ने का स्थान दिया है, आगे बढ़ाया है। सर, कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ? चलिए जानने की और कोशिश करेंगे। सर, बाबा साहब के बारे में
बाबा साहब के बारे में क्या सुनना चाहूंगा। आज के दिन क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे 14 अक्टूबर मतलब ये दीक्षा भूमि जो है, ये पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की थी ओला में कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुलामी में लोग जी रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब ने घोषणा, धर्म घोषणा जिसे हम कहते हैं, उन्होंने घोषणा की कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया वो मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि वो मेरा अधिपत्य नहीं। और बाबा साहब ने अपनी प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के जो लेंड्रा पार्क था उस समय, आज हम दीक्षा भूमि कहते हैं, इस दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में उनको भी दीक्षा दिया और हर एक को दीक्षा देने का अधिकार दिया। आज का दिन विशेष तो आपने हमें बता दिया, हमारे व्यूअर्स को, हमारे पूरे इंडिया को, परंतु एक बोलते हैं ना हमारा इंडिविजुअल एक उनके साथ कनेक्शन होता है। आपका कोई कनेक्शन है उनके साथ जो इंडिविजुअली आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? देखो, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सुधीर पाटिल मेरा नाम है और मेरी खुद की अशोक सम्राट सेना है। और आज मेरा जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस चौक में अशोक सम्राट चौक वो नाम दिया हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले, अशोका ने जो 84,000 स्तूप बनाए थे और उस पर हम लोग लेनिया में भी काम कर रहे हैं। तो लेनिया खोजना, उनकी दुर्दशा जो है, वहाँ से जो हिंदू लोग वहाँ पे आक्रमण करके रहते हुए, वो लेनिया को मुक्त कराने का भी हमारा कार्य चालू है। साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा दी, शिक्षा संगठित हुआ और संघर्ष करा, इसको लोगों में जाकर जन जागृति करने का काम हमारा चालू है। ये दुख की बात है कि हमारा समाज आज भी अलग अलग पार्टी में बिखरा हुआ है। अगर आज भी हमारी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली जितनी ताकत है, सिर्फ नागपुर की बात नहीं करता कि ऑल ओवर इंडिया में, कर्नाटक में देखो आपको डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले, चेन्नई में जाओ, मद्रास में जाओ, बैंगलोर में, सभी तरफ। और ये लोग अगर एक मंच पे एक हो जाए तो जो लोग कहते हैं ना कि ये मतलब महासत्ता बन सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया, बौद्ध धर्म को मानने वाले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले अगर एक हो जाते हैं तो हमारे भारत को महाशक्ति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक ये सरकार जो मनवादी सरकार है, ये हमको देश को बेच के खाने वाली सरकार है, ये इसके रहते हुए हमारा और नीचे जा रहा है, 50-150 साल पीछे गया, हम ऐसे समझते हैं। क्योंकि उस समय नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे तब सुई भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी और हमारे आजकल सब मतलब लोग मंगल तक पहुंचे। लेकिन ये 14 सालों हम देखते तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया जिसको हम गर्व से कह सके हम भारत में। सर, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के काम के ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी ने एकाधी चौक पे आके, जैसे किसी मीडिया, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, एकाधी काम ऐसा एक बताया प्रमुखता से कि ये मैंने काम किया है। उनके सिर्फ कागजों पे काम रहते हैं और जो कुछ भी उन्हें मीडिया दिखाता है तो एक क्या बोलते हैं, चौखट रहती है, एक फ्रेम बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं, सेटअप पे जाके वो लोग बात करते हैं। कभी वो किसी कॉलेज में नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, या किसी एम्स को जाके खुद होकर जाके देखा नहीं। एक सेट कर दिया जाता है तैयार, और वहाँ पे बच्चों को बैठा दिया जाता है, वो पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। अगर एक आधी गलत सवाल बच्चों ने पूछ लिए तो प्रधानमंत्री उसका उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर तो नागपुर के ही है सर, आपने उनके सामने भी कोई बात अगर रखना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से रख सकते हैं कि क्या चाहती है बाबा साहब की सेना। अभी चीफ मिनिस्टर जो अभी बना हुआ है, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं जब तक विदर्भवासी को विदर्भ नहीं रहता तो शादी नहीं करूंगा। आज उन्होंने शादी की है, तो बच्चे हुए, तो विदर्भ बनाया क्या? ये तो ऐसे लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना के यहाँ पे सत्ता में आए। उन्होंने, मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूं, उन्होंने सत्ता छोड़नी चाहिए, ये तो विदर्भ बना कर देना चाहिए। आप कौन से चीफ मिनिस्टर की बात? तो आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी सेना का कोई बहुत बड़ा अध्यक्ष बैठ जाए, या फिर जैसे हम मैं नहीं चाहता मेरी सेना का बैठे करके। भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या ब्राह्मण क्यों न हो, लेकिन भारतीय संविधान को जो मानता है, जो भारतीय संविधान को अपने पैरों तले रोनता है, ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा चीफ मिनिस्टर हमें नहीं चलता। ये हमारे देश को विपरीत दिशा में लेके जाने वाले, नागपुर में आने वाले प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र में आने वाले प्रोजेक्ट, गुजरात लेके जाने वाली सरकार हमको क्यों चाहिए? आप चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए, देवेंद्र देवा को बोलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सुधीर पाटिल, हम तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर ने तो खुद ही कहा है, नागपुर में खादी बनाओ, खुद खादी नागपुर में करो। नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये तो गांधी जी की बात थी। गांधी जी की बात को, गांधी जी की बात को 2014 में देश आजाद हुआ, वही बात कर रहे कंगना वाली, है ना? आप तो वही बात कर रहे हैं। हमको तो मतलब 47 में आजादी मिली है। उस समय क्या था, उस समय की बात करें, गांधी जी ने उससे पहले से दांडी यात्रा निकाला, तब गांधी खुद कपड़ा मतलब बनाता था अपना, खुद धागा काटता था। खादी की बात तो गांधी जी लोग तो भूल चुके थे, मोदी साहब ने। ये तो गांधी को मारे मरवाए ये लोग है, ये लोग गांधी को मरवाए है। ये तो आतंकवादी संगठन है जो आप सत्ता में बैठा हुआ है। आप उनसे मतलब इनकी बात कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, आपके ही मैं न्यूज चैनल से पूछता हूँ, सारे दर्शक सुन रहे हैं मुझे, भारत के गांधी को मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे कौन है? नाथूराम गोडसे का ये लोग बोलते हैं कि मतलब विचारों को मानना चाहिए, उनकी जयंती मनाते हैं लोग। क्या नाथूराम, एक आदमी जो महात्मा जिसको बोला जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसको जो आदमी मारता है उसको तुम आतंकवादी बोलेंगे या उसकी पूजा करेंगे, उसको महान व्यक्ति बोलेंगे? बताइए। महान व्यक्ति फिर कौन है सर? महान व्यक्ति तो हम आए जिनके चरण छूने के लिए। वो तो है ही, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो तो रचेता है, वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा आपकी नजर में और कौन है? उसकी नजर में हमारे उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब के अलावा मुझे नहीं लगता भारतवर्ष में कोई महान व्यक्ति है। तो आपने सुना, सर का कहना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर के अलावा उन्हें या फिर उनके अनुयायियों को ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई भी नहीं है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, महिलाओं के लिए काम किए, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस सिखाया, है ना। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदुत्व में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं,
ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए सारी बातों को सुनिए। आपके पास में मैं ये सवाल का जवाब छोड़े जा रही हूँ, दर्शक डिसाइड करें कि 14 अक्टूबर 1956 को जो एक ओथ ली गई थी वो किस तरीके से ली गई थी, और आज जो उनके अनुयायी यहाँ गठित हुए हैं उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको बड़ा बोलते हैं। ये तो बड़प्पन की बात नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को हम कहीं से भी नहीं बोल सकते। उन्होंने बेस्ट से बेस्ट काम किया। He was a social reformer, he was a social activist, he was a lawyer, he was everything when it comes to a learned person in India. So, like the channel, subscribe, press the bell icon with cameraman Vivek. I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. तो 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस दिन को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसने सामाजिक न्याय, समानता और आत्म सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित एक नए आंदोलन की शुरुआत की। यह धर्मांतरण भारत में बौद्ध धर्म में रूपांतरण की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। धर्मांतरण का कारण अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को इसीलिए त्याग दिया क्योंकि उन्हें यह धर्म जातिगत भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने वाला लगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि उसके सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित थे। दीक्षा का समारोह 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और उन्हें त्रिरत्न और पंचशील की शपथ दिलाई। साथ ही 22 प्रतिज्ञाएं भी ली। 14 भाइयों में सबसे छोटे अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास छोटे से कस्बे महू में हुआ था। दलित परिवार में जन्म होने की वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर को स्कूल में सबसे आखिरी पंक्ति पर बैठाया जाता था। यहीं से अम्बेडकर भेदभाव की इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं दीक्षा भूमि में क्योंकि आज है 14 अक्टूबर। क्या आप जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा ली थी। 22 जो संकल्प होते हैं वो 22 संकल्प लिए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलके दीक्षा भूमि में, इसी दीक्षा भूमि में जो आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 के पहले जो ये इतना बड़ा संकल्प लिया गया, ये इतना आसानी से नहीं लिया गया था। इसके लिए बहुत पुरानी एक सम्मेलन हुआ था जो कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं मेरे सामने कि किस तरीके से एक सम्मेलन हो रहा है, एक तरीके से एक आंदोलन होता है, विजय के बारे में बताया जाता है। परंतु भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनकी जिंदगी को देखते ही बनता है। 1935 में इसकी ज्वाला जली थी और ये तय किया गया था कि हमें इस तरीके से एक संकल्प लेना, इस तरीके से हमें धर्म परिवर्तन की ओर जाना है, बौद्ध धर्म को अपनाना है। तो आज का दिन बहुत शुभ दिन है। लेकिन मुंबई में 1936 में अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि 1936 में मुंबई में इस बारे में एक फाइनल जजमेंट पास हुआ था, एक फाइनल तय हुआ था कि क्या सही में हमें इसका एक लोगों की हमें एक पूरी लोग मिलते हैं कि नहीं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्या डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के साथ लोग, उनके अनुयायी मिलके काम करते हैं कि नहीं। तभी 1936 में इसका गठन हुआ और उसके बाद आज जो कि हम 14 अक्टूबर कहते हैं, 1956 में उन्होंने इसी दीक्षा भूमि में आकर एक अपना, कहते हैं लोग इसे क्या कहें, परंतु एक संकल्प था। क्या इसकी तैयारी, क्या इसकी स्टडी पहले नहीं हुई थी? सारे धर्मों को जानने के बाद में उन्होंने ये कहा था, मुझे इस बात से है कि मैं एक हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की बात की, उन्होंने लोगों को एकजुटता की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि हमें शिक्षा की ओर चलना है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच।